Good morning, students. We have performed the first and second experiment. They are belongs to the Varnier calipers, and we have already studied about its basic concept of the Varnier calipers, and we measured the diameter of cylindrical body, and in the next experiment we already measured the internal diameter of the beaker and depth of the given beaker. So by using Varnier calipers. So I repeat again few points of the Varnier calipers. Why we use the Varnier calipers? To measure the accurate length up to 1/10th part of millimeter. To measure the accurate length up to 1/10th part of millimeter, we use the Varnier calipers. We use the Varnier calipers. But suppose that if we want to measure the accurate length which has less than 1/10th part of millimeter, 1/10th part of millimeter. सपोज दैट आपको मालूम हो कि 1/10th पार्ट से भी छोटी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उस कंडीशंस पे यदि हम मेज़रमेंट करना चाहते हैं तो वी द Varnier calipers अनेबल टू मेज़र द लेस दैन 1/10th part of the millimeter. So we use the screw gauge. So our next topic is screw gauge. You are seeing on the screen that is screw gauge. Screw gauge is depend on the principle of micrometers. Screw gauge is depend on the principle of micrometers. You know, and micro means very small. Means if you want to measure the accurate length which has less than 1/10th part of millimeter, we use the screw gauge. Okay students, but how much? How much? कितना छोटा कर सकते हैं? Means we can measure the accurate length 100th part of millimeter. 100th part of millimeter we use the Varnier screw gauge. Means we can measure the accurate length up to 100th part of millimeter because screw gauge is depend on the principle of micrometers. Right students? So first we introduce about the screw gauge. What is the screw gauge and its different parts of the screw gauge. So now you are seeing the picture. You are seeing the picture. This is the screw gauge. This is the figure of screw gauge. So suppose let's start to study the different parts of the screw gauge and its work. क्या इसका वर्क होता है, पार्ट्स में क्या क्या वर्क होता है, आई स्टडी करते हैं. लेट्स तो बिकॉज यू स्टडी अबाउट द Varnier calipers, तो वहाँ पर आपने देखा था कि दो जॉज होते थे. जॉज, एक मूवेबल जॉज, एक फिक्सिबल जॉज. तो उसी टाइप से और उस जॉज का वर्क क्या होता था? व्हाट इज द वर्क ऑफ द जॉज? वहाँ पर टू हैंडल, टू होल्ड द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए जॉज का यूज़ करते थे वहाँ पर. तो वहाँ पर सेम वर्क होगा, बट यहाँ पर उसको हम जॉज ना बोल करके बल्कि वी कॉल्ड द स्टड्स. STUDS. You are seeing here. This is the stud, and stud can hold the object. Studs can the hold of the object you are seeing here, and you are seeing here that there is point A and B, and you can also that there are two types of the studs: movable studs and fixable studs. So movable studs it's A and fixable studs it's B. So now we means we can hold the object through studs. Right student? Okay students, you are seeing here.
So now you are seeing this is the screw, and we will rotate here. This is the point here. The point is here, and यहाँ पर देखेंगे कुछ इस टाइप का एक वर्क है. तो वी कैन होल्ड हियर थ्रू द फिंगर्स एंड थम्स, and we can rotate this part. So screw is going forwards or backwards. ये आपका आगे जाता है या पीछे होता है? Through ratchet. This is called the ratchet part, and denoted by the R. This is called the ratchet. We can rotate through this part. This is called the ratchet. So through ratchet, if we rotate this part, the screw goes up forwards and backwards. Suppose that if you want to measure the diameter of this pen R, we can measure the thickness of this sheet. So we can use the screw gauge. So now here, you are seeing this is a ratchet, and if you rotate, then forward direction and backward direction. Suppose that if you rotate and you are seeing some scales. You are seeing here एक स्केल आपकी यहाँ पर होंगी जो आपकी रोटेट करेंगी, जिसको कि हम लोग दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर स्केल. एंड हियर इज आप देख रहे हैं यहाँ पर. सो सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स. यहाँ पर सर्कुलर टोटली जो जैसे ये पेन की कैप मैं आपको देख रहा हूँ, और इस पेन की कैप में अगर हम ये आपका चूँकि ये यहाँ पर तो आप ऐसे देख पा रहे हैं, बिल्कुल ये सिलेंड्रिकल टाइप का होता है. और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे होता है. जिससे घुमाते हैं, रोटेट कराते हैं, तो ऐसे यहाँ पर स्केल भी रोटेट होती हैं. तो टोटली जो है पूरे उसमें देयर इज 100 डिविजन्स होते हैं. यहाँ पर 100 डिविजन्स टोटली होते हैं. कहाँ पर? सर्कुलर स्केल में. सो देयर इज 100 डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. इफ यू रोटेट थ्रू रैचेट्स, सो यहाँ पे कैप टाइप का होता है, तो यहाँ पर ऐसे ऐसे ओपन होता जाता है. तो कुछ डिविजन्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं. यू आर सीइंग हियर दे आर फ्यू डिविजन्स वी आर सीइंग द फ्यू डिविजन्स हियर. You can count here, but you are seeing also a line here. ये देखिए आप, you are seeing the also line here. यहाँ पर this is called a reference line. Linear reference line बोलते हैं यहाँ पर. So you can calculate the all divisions, all points, all readings through this reference line. Suppose that I am taking an example. Suppose that you are traveling, you are going in a circular path. तो आप कितना राउंड कर पाएंगे? तो you can decide a point, a fixed point, and then you can move from that point to another डाइन पॉइंट, और वहाँ से फिर से एक बार पूरा वापस आते हैं. दैट इज कॉल्ड द मीन्स आप कह सकते हैं कि वन कंप्लीट रोटेशन हुआ. राइट. सो ये वी कैन काउंट द ऑल पॉइंट्स, ऑल डिविजन्स फ्रॉम द रेफरेंस लाइन. जैसे ही हम रोटेट कराते हैं, जैसे सपोज दैट आई एम टेलिंग ये कैप है और कैप को रोटेट कराता हूँ, तो इफ वी डिसाइड पॉइंट, फिक्स पॉइंट, एंड वी रोटेट दिस, तो अगेन वो पॉइंट सामने आ जाता है. दैट इज कॉल्ड द वन कंप्लीट रोटेशन. आपने कोई पॉइंट नहीं बनाएंगे तो इट मीन्स आप कैसे कह सकते हैं कि कंप्लीट रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ. राइट. सो ये सर्कुलर टाइप का है, टोटली सर्कुलर है ये. तो दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर स्केल. दिस इज सर्कुलर स्केल एंड दिस इज रेफरेंस लाइन. और डिविजन्स जो बने हुए हैं, यानी स्केल जो बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द लिनियर स्केल. बिकॉज the all divisions lie on a linear, so it's called the linear scale. There few divisions are showing here. You are seeing this. तो यानी कि means you can say also that
there are two types of the scale, linear scale and circular scale. There are two types of the scales, linear scale and circular scale. So linear scale has a minimum maximum 10 or 15 divisions, 10 और 15 डिविजन्स. यहाँ पर कुछ और ओपन करेंगे, जैसे इसको रोटेट कराएंगे तो कुछ और ओपन हो जाएंगे. देयर आर 10 डिविजन्स और 15 डिविजन्स एंड सर्कुलर स्केल हैज़ 100 डिविजन्स. हाउ मेनी डिविजन्स? देयर आर 100 डिविजन्स. ओके, एंड दिस इज अ हब, क्योंकि यहाँ पर आपका टोटली ये से पूरा टोटली फ्रेम होता है. इस टोटली दैट इज कॉल्ड अ फ्रेम. यहाँ से फ्रेम, और इसी फ्रेम के अंदर से ये टोटली सेटअप होता है. जैसे जैसे इसको रोटेट कराते हैं ये स्क्रू जो है फॉरवर्ड या बैकवर्ड्स होता है. इस पॉइंट को हम लोग हब बोलते हैं. दिस इज पॉइंट कॉल्ड द हब. तो ये आपका दिस इज द इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द circular scale. Means we can measure the accurate length up to 100 part of the millimeter. So now here if we are going to the linear scale, every divisions of the linear scale has only 1 millimeter. यानी कि ये जो होता है ये 1 मिलीमीटर होता है. यहाँ पर मिलीमीटर से भी छोटे डिविजन्स होते हैं ये. ओके, बट यहाँ पर आप देखते हैं तो लिनियर स्केल्स का डिविजन्स होता है. इस एवरी डिविजन्स, द वैल्यू ऑफ एवरी डिविजन्स ऑफ द लिनियर स्केल इज 1 मिलीमीटर. सो नाउ हियर determination of the least count. How will you find out the least count? Least count, I think the least count is the least count means we can measure the minimum count through the apparatus is called the least count. मतलब हमको कम से कम कितना least count यहाँ से measurement कर सकते हैं. How will you find out the least count of the screw gauge? So first to find the least count of the screw gauge, first we find out the pitch. पहले हम pitch find out करेंगे और pitch को define करेंगे कि pitch होता क्या है. तो let's start to define the pitch. You are seeing on the pictures. Determination of the least count. Pitch is the linear distance traveled by the screw. Yes, I think मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूँ. The distance traveled by the screw in one complete rotation is called the pitch. तो आइए देखते हैं. The pitch is the linear distance traveled by a screw is one complete rotation and is equal to distance between two consecutive threads. नोट वैल्यू ऑफ द, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको इसको क्लियर करा देता हूँ. द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड द पिच. सपोज दैट मैं एक पेन ले रहा हूँ, यहाँ पर है. तो जैसे मैंने एक पॉइंट यहाँ पर मार्क कर लिया. सपोज दैट एक पॉइंट मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया. ये मान लीजिए ये आपका ये एक पॉइंट है. ये जो आपका कुछ देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ के पॉइंट है. अब मैंने इसको रोटेट करा रहा हूँ, और जैसे रोटेट करके फिर से वही से आ जाता है. तो दैट इज कॉल्ड द वन कंप्लीट रोटेशन. दैट इज कॉल्ड द वन कंप्लीट रोटेशन. सो नाउ हियर प्लीज सी दिस पिक्चर अगेन. ये स्क्रू से हमने रोटेट कराते हैं तो क्या होगा कि ये कुछ बैकवर्ड फॉरवर्ड्स होगा. तो ये देखेंगे कि सपोज दैट ये 5 आवर्स यू आर सीइंग द 5 डिवीजन, 5 डे दिख रहे हैं ना. तो 5 डिवीजन्स अगेन वहाँ पर आ जाए. दैट इज कॉल्ड द वन कंप्लीट रोटेशन. एंड इसके बाद हम देखते हैं कि कितना ये फॉरवर्ड गया या बैकवर्ड गया, कितना डिवीजन. जैसे हम रोटेट कराते हैं तो स्क्रू क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स रोटेशन. तो हमें कंप्लीट ये करना है कि एक रोटेशन को इसको रोटेट कराते हैं यहाँ से. तो ये जो रोटेशन होता है तो वन कंप्लीट रोटेशन में कितना डिविजन्स ये फॉरवर्ड गया या बैकवर्ड गया ये कवर करता है.
कितना डिविजन्स ये कवर करता है, किसका डिविजन्स, ये सर्कुलर लीनियर स्केल का, यानी कि आगे जाएगा तो पीछे जाएगा। तो हमें चेक करना है कि कितना डिविजन्स ये कवर किया। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको स्टड्स को टोटली स्टार्ट कर देंगे, और फिर जब स्टार्ट कर देंगे तो 8 डिविजन्स वो कर लेंगे। तो सपोज दैट यू आर सीइंग द पिक्चर्स, 5 डिविजन्स इज शोइंग, 5th डिविजन्स इज शोइंग हियर, यू आर सीइंग हियर। और इन 5th डिविजन्स अगेन रोटेट कराने पर वही आ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी कि वो एक कंप्लीट रोटेशन हो गया। तो अब आगे हमें देखेंगे कि पिच का एक फॉर्मूला होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पिच। तो आइए देखते हैं पिच का फॉर्मूला क्या होता है, और उसी से निकालते हैं कि ये कैसे होगा। You are seeing the pitch of the screw. The pitch of the screw is distance moved by the screw upon number of full rotation, complete rotation, complete rotation. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने रोटेशन में कंप्लीट किया। तो जैसे भी बताया कि एक डिवीजन से, तो हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम 5 टाइम्स हम रोटेट कराते हैं, मिनिमम 5 टाइम्स। तो इस स्क्रू को, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये मिनिमम इसको 5 टाइम्स रोटेट कराते हैं यहाँ से, इस जगह से। तो 5 टाइम रोटेट कराएंगे तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कुछ आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो आई एम टेलिंग यू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन। सो सपोज दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्क्रू इज 5 डिविजन्स and total number of complete rotation is 5. So you can divide by 5.5 means 1 millimeter. So 1 millimeter is the pitch of the screw gauge. It means you can also say that the distance traveled by the screw in 1 complete rotation is 5 millimeter. यानी कि एक डिविजन्स में ये एक डिविजन्स में एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक डिविजन्स को रोटेट कराने में 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक रोटेशन को कंप्लीट कराने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 मिलीमीटर। मीन्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्क्रू इन 1 कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड द पिच। मीन्स अब यहाँ पर 1 मिलीमीटर हुआ, 1 पिच, द वैल्यू ऑफ द पिच इज कमिंग 1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक रोटेशन में, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक रोटेशन में। तो इसको हम लोग क्लियरली करेंगे। दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द स्क्रू गेज। ये बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, और इसी से रिलेटेड आपका नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी है। तो आपको ये ज़रूरी जान लेना ज़रूरी है कि पिच क्या होता है। मैं कई बार इसको रिपीट कर चुका हूँ। सो आई लेट स्टार्ट द लीस्ट काउंट। सो लीस्ट काउंट यू आर सीइंग हियर, द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। Least equal to pitch upon total number of division on the circular scale. So you know that the pitch is equal to 1 millimeter and total number of division, I am telling you there is 100 divisions here. Total number of division of complete rotation is 100. So you can divide here. You can put the value of the circular scale, number of circular scale divisions. There is 100. So you can find out 1 by 100 equal to 0.01 millimeter. 0.01 millimeter is the least count of the screw gauge। यानी कि आप 0.01 यानी कि इतना कम, इतनी वैल्यू तक मीन्स यू कैन मेजर द एक्यूरेट लेंथ अप टू 0.01 मिलीमीटर। सो आप यहाँ पर आए। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ विल यू फाइंड आउट द एरर्स। एरर्स क्या होते हैं? सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द एरर्स। आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो बैकलॉस एरर्स होते हैं, जो कि इसमें क्या नाम, बैकलॉस एरर होते हैं, जो कि इससे रिलेटेड होता है। जहाँ कहीं स्टड्स अगर सही ढंग से नहीं बैठ रहा, अगर वो आगे पीछे है तो वो बैकलॉस एरर होता है, तो हमको यहाँ से इसको ठीक करना होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाता है। बट कुछ एरर्स और होते हैं, पॉजिटिव एरर्स एंड नेगेटिव एरर्स। तो आइए यहाँ पर देखते हैं पॉजिटिव एरर्स क्या है और नेगेटिव एरर्स क्या है।
तो आइए मैं देखता हूँ, आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका एक सर्कुलर स्केल है और ये सर्कुलर स्केल 0 है और ये आपका लीनियर स्केल है, ये लीनियर स्केल लाइन है। तो बोथ आर द स्ट्रेट, जैसे कि आपने यू हैव सीन आई थिंक इन द वर्नियर कैलिपर्स। सो बोथ लाइन आर स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स देयर इज नो एरर्स, नो एनी एरर्स, कोई एरर नहीं है। अगर दोनों जीरोज लाइन आर स्ट्रेट यानी कि कोई एरर्स इसमें नहीं है। बट अगर इसमें कुछ आगे पीछे होते हैं तो फिर एरर्स होते हैं। तो नेगेटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द एरर्स, नेगेटिव एरर्स एंड पॉजिटिव एरर्स, टू टाइप्स के एरर्स होते हैं। तो टू टाइप्स के एरर्स में पॉजिटिव एरर्स क्या होता है ये आगे देखते हैं। अगर दोनों को बैक लॉस, अगर दोनों को जैसे हमने यहाँ क्या किया, इसको रोटेट कराया, हमने इसको रोटेट कराया और रोटेट कराने में स्टट हो गए और ये सट होकर के आगे निकल गया, ये हो गया। बट जीरो की लाइन जो है रेफरेंस लाइन के सामने नहीं आ रही है, कहीं और आ रही है। जैसे अभी तक सामने आ रही है तो कोई एरर्स नहीं है, अगर ये सामने नहीं आ रही है कहीं और आ रही है। सपोज दैट आप ये फिगर आप देख रहे हैं, यू आर सीइंग दिस फिगर, दिस इज अ सर्कुलर स्केल एंड दिस इज अ लीनियर स्केल, लीनियर लाइन, ये लीनियर है। बट zeros line doesn't in the state of the linear scale, मतलब both are not coinciding or both are not parallax, सीधे नहीं हो रहा है, तो ये डिफरेंट है। यानी जीरोज लेफ्ट हो रहा है, यानी कि इसको रोटेट कराने पर यहीं आ रहा है, इसके पास तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव एरर्स हैं, ये पॉजिटिव एरर। अगर जीरो लेफ्ट हो रहा है तो ये पॉजिटिव एरर्स हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव एरर्स कह सकते हैं। कितना डिविजन्स पॉजिटिव है हम लोग ये भी सब देख लेते हैं। सपोज दैट 2 डिविजन्स है, यहाँ पर 2 डिविजन्स वाला जो डिविजन्स है वो 2 डिविजन्स पर हुआ, यानी कि 2 डिविजन्स लेफ्ट हुआ, 2 डिविजन्स यहाँ पर लेफ्ट हुआ, यानी कि उसको पहुँचने में 2 डिविजन्स और होता है तो ये पहुँच जाता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर? तो मैं थोड़ा सा कॉपी में यहाँ पर वो कर देता हूँ। तो 2 डिविजन्स, 2 मल्टीप्लाई बाय, ऐसे मैं एक कॉपी में बना देता हूँ। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01, ये लिस्ट काउंट है। जितना डिविजन्स लेफ्ट हो रहा है उसको मल्टीप्लाई, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जैसे यहाँ पर 2 डिविजन्स ही हो रहा है, 1 2, अगर 5 होता है, 10 होता है तो उतना ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0. तो 2 और 0.02, यानी इतना एरर्स आपका हो रहा है। तो फाइनली हमको इसको हमें लास्ट में जो आएगा तो ऐड करेंगे, बट उसको हम कैसे ऐड करेंगे हम आपको आगे वाले वीडियोस में बताएंगे। ये हुआ पॉजिटिव एरर्स लेफ्ट। अब हो सकता है कि जीरो क्रॉस करके आगे निकल जाए, जैसे आपका यहाँ है इस फिगर में आप देखें, ये जीरो क्रॉस कर रहा है, ये जीरो आपका, ये जीरो क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, ये जीरो आगे पहुंच रहा है, रेफरेंस लाइन है, जीरो आगे। और कितना डिविजन्स पहुंच रहा है? 3 डिविजन्स, 1 2 3 डिविजन्स क्रॉस कर रहा है, क्रॉस कर गया ये। तो जो क्रॉस कर गया इट मीन्स देयर इज नेगेटिव एरर। लेफ्ट हो रहा है तो पॉजिटिव और क्रॉस कर रहा है तो नेगेटिव एरर्स। तो नेगेटिव एरर्स के लिए क्या करेंगे, वही सेम चीज़, कितना डिविजन्स यानी 3 4 5 जो भी होता है, तो हम लोग 3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.01, 0.01 में क्या है, ये आपका लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 तो यहाँ पर 0.03, इतना नहीं कि ये आपकी वैल्यूज़ हुई, इतना वैल्यूज़ आपको प्लस करना पड़ेगा। पॉजिटिव, अगर आपका पॉजिटिव एरर है तो माइनस करना पड़ेगा और नेगेटिव है तो प्लस करना पड़ेगा। आइए हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको हम लोग देखेंगे। तो आई थिंक हम लोग क्योंकि वीडियोस और बड़ा हो जाएगा तो कुछ इतना ही समझने की ज़रूरत है अभी। और नेक्स्ट वीडियोस यानी नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स जो हम लोग कंप्लीट करेंगे वो नेक्स्ट वीक में कंप्लीट करेंगे। और अभी आप इसको देखेंगे अच्छी तरह से, और अगर वीडियोस में से क्लियर हो पाएगा तो आपको उसको 1-2 बार रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगी। और ये और अच्छा से क्लियर तब समझ में आएगी जब आप जब इसके ऑपरेटर्स आप अपने हैंडल टच करेंगे, वहाँ पर लैब में देखेंगे तो आपको बिल्कुल से ये और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पिक्चर में और ये एक रियल में जब आप लैब में आकर के उसके ऑपरेटर्स को टच करते हैं, उसको हैंडल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। तो इस बात को ये ध्यान रखना है कि आपका मे बी कि 100% क्लियर नहीं हो पाया हो सकता हो,
और उसका रीज़न कुछ यही हो सकता है। बट अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो जितनी चीज़ें आप यहाँ पर देख लेंगे, जब आप लैब में जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल ईजी रहेगी। बस आप उसको जैसे टच करेंगे आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी कि लीनियर स्केल कौन सा है, सर्कुलर स्केल कौन सा है, और हम उसको एरर्स कैसे आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। सो आपको उसको अपने से एक बार वेरीफाई हमसे कर लेंगे तो निश्चित तौर पर वो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हमने जो समझा है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही समझा है। इसके पिक भी मैं आपको भेज दूंगा, आप उसको और अच्छे से समझ लेंगे, आप उसको देख लेंगे। और फिर भी कोई इसको वीडियोस को भी 2-3 बार आप इसको रिपीट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपकी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। और ओके स्टूडेंट्स, मैं आई थिंक वीडियोस को मैं ही क्लियर करता हूँ, स्टॉप करता हूँ।